Hello everyone, I am Ritika Zuzgar, Assistant Professor IT Department. So in the course of machine learning, we started our fourth unit, that is tree-based and probabilistic model, where we already discussed tree-based decision tree, attribute selection measure, in that in information gain and entropy, and the second thing is a Gini index with examples. Okay, so the next point is the ensemble learning in tree-based, where we discuss about tagging and boosting. Okay, so in today's lecture we discuss about what is meant by ensemble learning, tagging in a random forest. Okay, so let us discuss. So ensemble learning in general is a model that takes a model that makes the predictions based on the number of different models. So by combining individual model, the ensemble model tends to be more flexible and less data sensitive. More flexible means less biases and less data sensitive, that is the less variance. So let's start with the simplest tree-based algorithm. So it is the decision tree classifier and the regression. So we have so in this decision tree, in the single decision tree, it is created by fitting the training data. So imagine we ask a robot to learn from 10,000 training data, and later we want the robot to predict other 20,000 test data for us. So we can feel that only one piece of feedback is not enough. So we need a more robot to learn the training data and do more predictions for us. Okay. So ensemble learning contain the two most important method. The first is a bagging and boosting. Okay. So bagging is what training a bunch of individual model in a parallel way. हमारे पास एक bunch of मॉडल होगा, उसको हमें क्या करना है, पैरेलली एग्जीक्यूट करना है. मतलब वन डेटा एग्जीक्यूट होने के बाद सेकेंड वाला, ओके, देन थर्ड वाला, ऐसे. सो ईच मॉडल इज ट्रेन बाय अ रैंडम सबसेट ऑफ अ डेटा. रैंडमली कोई भी डेटा को चूज करेगा बट पैरेलली एग्जीक्यूट करेगा. Boosting is what training a bunch of individual model in a sequential way. So each individual model learns from mistakes made by the previous model. Okay. सो यहाँ पे देखो बैगिंग क्या करेगा, पैरेलली एग्जीक्यूट करेगा फर्स्ट वाला, देन सेकेंड वाला पार्ट, थर्ड, अप टू द एन नंबर ऑफ ट्रीज. बट बूस्टिंग क्या करेगा, यहाँ पे अगर हमारे पास ट्रेनिंग अ बंच ऑफ इंडिविजुअल मॉडल इन अ सिक्वेंशियली वे से हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट. मीन्स ये वाला जो डिसीजन ट्री है लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, वो क्या करेगा, सेकेंड वाले लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक. ओके, सो ईच इंडिविजुअल मॉडल लर्न्स फ्रॉम द मिस्टेक्स मेड बाय द प्रीवियस मॉडल. प्रीवियस मॉडल जो भी मिस्टेक करेगा उसको वो लर्न करके वो क्या करेगा, सेकेंड वाला एग्जीक्यूट करेगा. सेकेंड वाला जो भी मिस्टेक करेगा, थर्ड वाला क्या करेगा, उसको करेक्ट करके एग्जीक्यूट करेगा. ओके, सो इन द बूस्टिंग ऑल द नोड्स or all the decision trees are dependent, they are sequentially executed. but bagging के अंदर क्या होता है, वो parallelly execute करता है. ओके, सबसेट वन अलग है, सबसेट सेकेंड वाला अलग है, थर्ड वाला अलग होगा. ओके. सो बैगिंग एंड बूस्टिंग के अंदर, दैट इज फर्स्ट इज व्हाट बैगिंग. बैगिंग के अंदर कंसेप्ट है रैंडम फॉरेस्ट, और बूस्टिंग के अंदर कंसेप्ट है एडेप्टिव बूस्टिंग एंड द ग्रेडियंट बूस्टिंग. ओके, सो हियर वी डिस्कस अबाउट द रैंडम फॉरेस्ट. So random forest is a popular ensemble learning method used for both classification and regression because of its simplicity, flexibility, and the superior performance. So the random forest training algorithm use the aggregation, which is also called as a bagging, to reduce the variance of the model. So random forest method
or a random forest model can be trained efficiently on a large data set. The training set for each tree is about the original data and is drawn by the sampling with the replacement. So the remaining जो भी data होगा, that is the training data, are left out to be used to maintain a running unbiased estimation of the classification errors and the variable importance. So in the random forest method or in the random forest model takes only the random subset of features instead of finding the most important feature for a splitting a node. जैसे नॉर्मली जैसे इंफॉर्मेशन गेन के अंदर क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला एट्रीब्यूट है उसको हम कंसीडर करेंगे हाईएस्ट वैल्यू, ओके, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट है उसके लिए चेक करेंगे जो सेकंड वाला आता है एट्रीब्यूट, थर्ड वाला आता है, फोर्थ वाला, ओके। सो अगर हम थर्ड वाले को स्प्लिट करेंगे सो उसको हम कंसीडर करेंगे, देन राइट वाला साइड चेक करेंगे उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट सफिशिएंट या फिर एट्रीब्यूट सिलेक्टेड होगा। अगर फर्स्ट वाला सेकंड वाला एट्रीब्यूट सिलेक्ट होगा सो हम क्या करेंगे, राइट वाले साइड को सेकंड वाला एट्रीब्यूट चूज करेंगे, ओके। सो वो क्या करेगा सिक्वेंशियली, या फिर हम कोई भी इंफॉर्मेशन गेन की वैल्यू फाइंड आउट करके क्या कर सकते हैं, ट्री को फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं। बट रैंडम फॉरेस्ट के अंदर क्या करेंगे, रैंडमली कोई भी डेटा को हम चूज कर सकते हैं, ओके। So random forest takes only the random subset of features instead of finding the most important feature for the splitting a node. So this random forest leads to more diversity and less correlations among the trees, which in turns lead to the better model performance. So random decision tree or random forest are an ensemble learning method for a classification problem and the regression problem also. So it operates by constructing a multi-node of decision tree at a training time and output the class that is the model of the classes or the classification or mean prediction of the individual tree. सो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास होल ट्रेनिंग डेटा होगा, ऑल डेटा, जिसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे सबसेट के अंदर, सबसेट 1, सबसेट 2, सबसेट 3, ओके। तो ये ट्री को फर्दर हम डिवाइड करेंगे, ये वाली ट्री को फर्दर डिवाइड करेंगे, ये वाले ट्री को फर्दर डिवाइड करेंगे, ओके, रैंडमली। So as the name suggests, the random forest is a classifier that contains the number of decision tree on a various subset of the given dataset and takes the average to improve the predictive accuracy of the dataset. So instead of relying on one decision tree, the random forest takes the prediction from each tree and based on the majority votes of prediction and it predicts the final output. So where the greater number of trees in the forest leads to the higher accuracy and prevents the problem of overfitting. Okay. So यहाँ पे देखो ट्रेनिंग सेट है, ये टेस्ट सेट है. So ट्रेनिंग सेट को हम डिवाइड करेंगे ट्रेनिंग डेटा 1, ट्रेनिंग डेटा 2 एंड n नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेटा. So उसके लिए डिसीजन ट्री क्रिएट करेंगे. जो भी ये जो ट्रेनिंग डेटा होगा जिसको होल ट्रेनिंग डेटा को हमने क्या किया, स्प्लिट किया है, उसके लिए डिसीजन ट्री फाइंड आउट की, ये वाले के लिए डिसीजन ट्री फाइंड आउट की, यहाँ पे भी डिसीजन ट्री फाइंड आउट की, ओके। इसको हमने एवरेज निकाला, उसका पूरा एवरेज निकाला, जो भी फाइनल डिसीजन ट्री होगा उसका एवरेज निकाला और देन प्रेडिक्ट किया, ओके। सो जैसे मैंने बताया था हम यहाँ पे क्या करें, वन डिसीजन ट्री के ऊपर डिपेंड नहीं है, मीन्स ये जो पूरा ट्रेनिंग सेट है वो पूरा ट्रेनिंग सेट जो है वो वन डिसीजन ट्री के लिए डिपेंड नहीं है, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द फाइनल आउटपुट, ओके। सो रैंडम ट्री के अंदर क्या कर रहे हैं, हम उसको स्प्लिट कर रहे हैं, ओके, एंड दे कैन सो आफ्टर स्प्लिटिंग अवर डेटा वी कैन इजीली प्रेडिक्ट द आउटपुट. So random forest takes the prediction from each tree. Decision tree 1 से भी वो predict करेगा, decision tree 2 से भी predict करेगा and n number of decision tree
and based on the majority votes we can predict the final output. Okay, so this is the concept of random forest. So as I said, the random forest is a ensemble method using in the bagging. Okay, so see here how we select the randomness. So step 1, step 2, step 3 एंड step 4. So step 1 क्या होगा यहाँ पे क्या है, एंटायर डेटा सेट है, इसको हमने डिवाइड किया. सी हियर यहाँ पे जैसे ऑल डेटा है उसको सबसेट 1 सबसेट 2 के अंदर डिवाइड किया, होल ट्रेनिंग डेटा सेट को हमारे, और उसको फिर डिसीजन ट्री अप्लाई किया, ट्री 1 ये ट्री 2 ट्री 3. ओके ऐसे. तो ये क्या हमारा एंटायर डेटा सेट है, उसको हमने क्या किया है, सबसेट 1 सबसेट 2 एन नंबर ऑफ सबसेट के अंदर डिवाइड किया. देन ये क्या होगा, उसके लिए डिसीजन ट्री क्रिएट किया. डिसीजन ट्री कुछ इस तरह से होगी. ठीक है. देन डिसीजन ट्री 2 के लिए भी सेम वैसा, और एन नंबर ऑफ जो भी हमने डिसीजन ट्री करके हमें वैल्यू मिली है उसका एवरेज निकाल के हमने क्या किया है, यहाँ पे आउटपुट प्रेडिक्ट किया है. ठीक है. सो स्टेप 1 क्या होगा, सिलेक्ट एन नंबर ऑफ रैंडम सबसेट फ्रॉम द ट्रेनिंग सेट. ओके, जो भी ट्रेनिंग सेट है यहाँ पे हमने क्या किया, एन नंबर ऑफ सबसेट उसके डिवाइड किया. देन स्टेप 2 के अंदर क्या होगा, हमने क्या किया, उसको ट्रेन किया है बाय यूजिंग द डिसीजन ट्री. जो ये वाला जो सबसेट 1 है, यूजिंग अ रैंडम सबसेट ऑफ फीचर्स टू स्प्लिट द ट्री. यहाँ पे हमने क्या किया, उसको स्प्लिट किया है रैंडमली. सेम फॉर द सबसेट 2 ऑल्सो. So one random subset is used to train one decision tree. One random subset is used for the one decision tree. Another random subset is used for the another decision tree, and so on. So here in the step 2, the optimal split for each decision tree are based on the random subset of features. ओके, सो एग्जाम्पल 10 फीचर्स है हमारे पास, उसमें से हम क्या करेंगे, 5 फीचर्स को ही कंसिडर करेंगे. सो यहाँ पे डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा. स्टेप 3 इज व्हाट, सो जो भी हमारे ईच इंडिविजुअल डिसीजन ट्री सब ट्री है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसके लिए हम क्या करेंगे, predict करेंगे वैल्यू. ओके, सो इन द स्टेप 3 each individual tree predict the record or some candidates in the test set independently. ओके, हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे कि कौन सा करेक्ट है. ये जो डिसीजन ट्री में से हमें वैल्यूज मिली है उसको हम टेस्ट करेंगे एंड प्रेडिक्ट वन वैल्यू. यहाँ पे भी सेम वैसा होगा, यहाँ पे भी सेम वैसा होगा इन द स्टेप 3. एंड स्टेप 4 इज व्हाट, मेक द फाइनल प्रेडिक्शन. उसका एवरेज निकाल के हम क्या करेंगे, predict करेंगे. ओके, सो फॉर ईच कैंडिडेट इन द टेस्ट सेट फर्स्ट सेकेंड एंड सो ऑन, द रैंडम फॉरेस्ट यूज्ड with the majority vote in the candidate, that is our final prediction. Thank you.